those who want to speak. Good afternoon to all. So let's start. Good afternoon to all. I extend a very warm welcome to Professor Sheila Mishra ma'am, to our OSH advisors, and everyone who has joined us in offline and online mode. Let me start by introducing the OSH. Open Students Hour is an open discussion forum for the students by the students. It is combined effort for inducing sense of responsibility in the students towards the society, spreading awareness and increasing sensitization towards social and national problems, and encouraging students for taking steps towards a better change. Its domain consists of disseminating the importance of sustainable development goals and to work for achieving the goals of sustainable development. OSH facilitates the interested students with a platform to raise their points of view on recent challenges which our society is facing and discussing over the selected topic with the aim to find solutions. Here a topic related to national, international conflicts, so academic issues, economic issues, social issues related to our mental health, our physical health, our overall development. OSH is held every Saturday in offline as well as online mode at 3 p.m. We are continuing after a very long time, and these sessions are being organized for past 3 years under the able guidance of Professor Sheila Mishra ma'am and our OSH advisors. Today we have gathered here to celebrate Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri's Jayanti. Every step taken by these great leaders teaches us a valuable lesson. Once Gandhi was on a train journey where he was beaten and thrown out of the first class compartment by a white driver as he refused to give up his seat to a European passenger. This incident is considered to be a turning point in Gandhi's life. After this, Gandhi chose to stay back in South Africa and fight for injustice. Gandhi started teaching everyone the concept of truth and firmness of satyagrah. He believed that passive resistance was the only way to fight against violence and discrimination. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 at Porbandar, Gujarat. He was the son of the Chief Minister of Porbandar, Karamchand Gandhi, and his mother was Putli Bai. He was raised in a very religious background, and from the beginning itself he was taught about the importance of self-discipline and non-violence. Mahatma Gandhi's mother, Putli Bai, taught him several important values of life, which Mahatma Gandhi followed with his whole heart. This is the reason he is said to be a man of great values. You all might wonder why many leaders gave their lives for our country, but what makes Mahatma Gandhi so special? His leadership qualities, noteworthy principles, unending dedication to attain freedom, mindset, and more make the man the father of the nation, of the entire nation. The amount of respect Gandhi gained has no limits. We as Indians have our hearts filled with major respect for the great man and the people living in foreign countries. On this very same day, in 1904, Lal Bahadur Shastri was born. Behind his one line I would like to say about Lal Bahadur Shastri is that behind his soft exterior was the firmness of a rock. He himself was greatly influenced by Mahatma Gandhi, from getting impressed by his denunciation of princes for supporting British to non-cooperation movement. He led country during India-China war. He dealt with food shortage. He dealt with the poverty that India was going through. He brought about Green Revolution and White Revolution. And one very notable thing about him is which was very tragic, that his death was the most mysterious case in India.
Now I would like to invite for proceeding this session further Priyanka ma'am and say something on the matter. Thank you, Aditya. First of all, am I audible? First of all, I would like to good afternoon to all of the participants and Professor शीला मिश्रा मैम. हम सभी इस मंच पर जुड़े हैं आज गांधी जी जयंती एंड शास्त्री जी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए. और आज का दिन हमारे लिए सभी के लिए स्टूडेंट, एज अ टीचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों लीडर्स से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं और ये हमारे फादर ऑफ नेशन भी हैं. तो इन्होंने जैसे कि काम किया था कि उन्होंने हमेशा ध्यान दिया कि उनकी वाणी से, उनके मुंह से जो शब्द निकले वो कभी किसी को दुख ना पहुंचाए. एक पोलाइटली और एक मतलब प्यार की भाषा से हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं. किसी से अपना कोई अगर कोई अधिकार लेना है तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्यार की भाषा से अपनी वाणी में एक मिठास भरी बोली से हम लोग उसका अपने काम को कर सकते हैं. तो इस जैसे कि हमें कोई चेंज लाना है, अगर सोसाइटी में या अपने घर में भी कोई चेंज लाना है, तो आसपास के एनवायरनमेंट में भी हमें अगर कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें खुद अपने अंदर चेंज लाना होगा, ताकि लोग देख कर सीखें उसे. अगर हम चेंज खुद, जैसे कि हमें अपनी वाणी को मीठा बनाना है, तो अगर हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो हमसे अच्छे से बात करे या हमें रेस्पेक्ट प्रोवाइड करे, तो हमें भी अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए. हम जब भी किसी से बात करें तो उन्हें रेस्पेक्ट दें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो. तो जब हम दूसरे को सम्मान देंगे तो वो हमें भी सम्मान देगा. तो बी द चेंज, गांधी जी का एक कोटेशन है कि बी द चेंज दैट यू विश टू चेंज इन द वर्ल्ड. तो हमें वो चेंज बनना होगा ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके. शास्त्री जी ने बहुत हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है हमारे नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए और यूथ के लिए भी उन्होंने काम किया है. तो उनका एक सीरियस कंसर्न था कि अभी भी है कि जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर है और अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में. तो हमें इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है. जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए जो भी बहुत सारे किसानों के लिए स्कीम्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिनका बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है. जैसे कि स्कीम्स में कुछ बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी उन्होंने लॉन्च की है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. तो इन सब का बेनिफिट मिल रहा है, बट इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके और इसका लाभ ले सके और हमारे देश में चेंजेस आएँ. और जैसे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, तो इसके लिए अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लोग को लोन प्रोवाइड किया जाएगा और हम लोग 30 लाख तक लोन ले सकते हैं. तो इस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं कि आप कोई अपना स्किल बेस्ड बिजनेस या इस टाइप का कुछ ओपन कर सकते हैं. तो ये सब काम हो रहा है और इससे हमें सीख मिलती है कि हम लोग आगे भी कैसे इन सब बातों पर प्रोसीड कर सकते हैं. जैसे कि अभी न्यूज़ में है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि हम लोग का जो आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे 2047 तक, तो हम लोग उसमें जो है किस तरीके से ये सब बदलाव ला सकें हम लोग, ताकि विज़न हम लोग का क्लियर होना चाहिए. इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है. तो मैं यही बोलना चाहूँगी और इन सब लीडर्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो थैंक यू सो मच टू प्रोवाइड मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आज जब हम लोग काफ़ी समय बाद OSH का सेशन फिर से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो
मुझे पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं जो पिछले 3 साल से हम लोगों ने की है, और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है जब हम गांधी जी का आशीर्वाद लेते हुए इसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं सभी यहाँ पे प्रेजेंट लोगों को बोलूँगा कि आप OSH के बारे में जानिए, और अपना इसके बाद अपना ईमेल आईडी उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग आपको ऐड कर देंगे, और आप यहाँ पे आके या तो आप चाहें तो अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो शांति से सुन सकते हैं। और कुछ इस सेशंस का पर्पस ये होता है कि हम एक कंक्लूजन पे या एक मोर रिफाइंड पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचना चाहते हैं। तो अब इस सेशन पे वापस कंटिन्यू करते हुए मैं सर को हैंड ओवर करूँगा। थैंक यू आदित्य। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैम का, प्रोफेसर शीला मिश्रा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये हमारा, हम सभी लोग जैसे जानते हैं कि 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, तो गांधी जी का जो विज़न था हमारा वो ये था कि जिस समय एक छोटी सी घटना है, जब महात्मा गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका में थे, उस समय वहाँ पे भेदभाव का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा था। माई सेल्फ अखंड प्रताप सिंह, रिसर्च स्कॉलर। तो भेदभाव का सिस्टम बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि इतना सिस्टम था कि जो लीगली मैरिजेस थी साउथ अफ्रीका में वो भी उन्होंने उसको इनवैलिड कर दिया था जो इंडियंस की थी। तो गांधी जी का जो पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिस्टम था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। पैसिव रेजिस्टेंस तब उन्होंने लागू किया जब उन्होंने देखा कि हम किसी सरकार के प्रति एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करके या उसका विद्रोह नहीं कर सकते कि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो नॉन वायलेंस तरीके से कैसे सोसाइटी में चेंजेस लाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो हमारे इंडिया में आए तो उनका जब साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने के बाद यहाँ के लोगों ने उनको मतलब एक आइडियल के रूप में कि ये कुछ अब इंडिया में चेंजेस लाएंगे इस तरीके से देखा। तो यहाँ पर जब उनके 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट रहे हैं, जैसे उन्होंने तिनकटिया सिस्टम को ख़त्म किया और चंपारण मूवमेंट रहा है, तो जिससे 2 से 3 साल उन्होंने पहले लगभग इंडिया को पूरा ऑब्ज़र्व किया पॉलिटिक्स में आने से पहले कि प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया की क्या है। उसके बाद जो अंग्रेज़ों की अप्रोच रही हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की, एंड दूसरा जो उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की, मतलब वो जब भी हम लोग यूनाइट होने की कोशिश करते थे वो कोई ना कोई ऐसा मतलब लुभावना ऑफ़र देके फिर से डिवाइड करके और शासन करने के लिए बाध्य हो जाते थे पूरे देश में। तो जो गांधी जी ने जब देखा कि पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा है, तो पैसिव जो रेजिस्टेंस है उसी के द्वारा नॉन वायलेंस ही हम पूरे देश में मतलब स्वतंत्रता को ला सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग अपनी प्रियम्बल जो संविधान है उसको भी जानते हैं कि फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सॉवरेनिटी हो गया, मेन जो वर्ड्स हैं उन पे फोकस किया गया कि पूरे देश में हम संप्रभुता की भावना अपनी बनाए रखें और इकोनॉमिक अनटचेबिलिटी जो सिचुएशन है उसको हम लोग सभी में इक्वल रखें। सो थैंक यू। Now I would like to invite my classmate Rini Durga Pal, who is connected with us through online mode. Hello Aditya. Yes, you are audible. You can speak now. Am I audible? Yes, you are audible. First of all, sorry for not joining basically as I was out of station. I was able to join only up to online. So first of all, I'm really sorry for that. So let me start with a शायरी। सबसे पहले मैं एक शायरी से अपनी ये बात को शुरू करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान। परम सामान्य सभी मौजूदा अक्षरों को मेरा मैं रीनी दुर्गा पाल का नाम। नए भारत के स्थापक के रूप में गांधी जी ने हमें स्वतंत्रतापूर्ण संघर्ष की दिशा विरासत छोड़ी, जिसे हम सभी संजोए हैं।
गरीबों और बेसहारा वर्ग के लिए काम करने की अदम्य इच्छा और फलीभूत करने की गांधी जी का अंतिम लक्ष्य। राष्ट्रपिता के विकास इसको हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि गांधी जी आज़ादी से महात्मा गांधी का अब केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति ही नहीं था, बल्कि वह गरीबी, निरक्षरता और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों और कुरीतियों से मुक्ति का सपना है। वे चाहते थे कि देश के सारे नागरिक समान रूप से स्वाधीनता और समृद्धि के सुख हों। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति चाहते थे। इसी भावना से उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, कानूनी संघ और गौ रक्षा संघ स्थापित करने के लिए हमें प्रेरित किया। जैसा कि हमारे सीनियर्स मिस प्रियंका दी ने कहा कि कैसा सपना वो देखना चाहते थे, कैसा राष्ट्र उन्होंने सोचा था और क्या उस राष्ट्र के मार्ग पे हम लोग आगे चल रहे हैं। पर मेरा यह मानना है कि तो बहुत हद तक हम उस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, पर कई ऐसी जगह है जहाँ पे हम अभी भी बहुत ही पीछे छूटे हुए हैं। अभी भी गांधी जी के सपने को हम पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे। गांधी जी का सपने एक ऐसा भारत था जहाँ पे एक माँ जो सड़क पे अपने बच्चे को एक खत लिखती है और कहती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच कट जाए। पर वह उस समय की बात है जब देश को परिणाम नहीं था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश डर जाने को नहीं, मर जाने को नहीं, फांसी चढ़ जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचार में अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करने को ही सबसे बड़ा देशभक्ति होता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर देश में लहराना यही देशभक्ति है, तो मेरे मायने में यह देशभक्ति नहीं है। अगर ये देशभक्ति होती तो फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेचता है तो क्या हम उसे देशभक्ति कहते हैं? उसके बिल्कुल वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। ताकि वह, और मेरे मानने में तो देशभक्ति को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो पंखाल तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। पर एक देशद्रोही से साधना, मुझे लगता है कि देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। छोटे होते ही मैं कुछ इस तरह से इस देशभक्ति को बताना चाहती हूँ कि देशभक्ति टोटल तब होती है जब मुसीबत के समय पर जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के युग में वो युवा जिस पर जिम्मेदारी थी अपने देश की, अपने समाज की, राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हम ना सभी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ एक पत्थर को लगते हैं हम लोग और नंगे सड़क पे सो जाते हैं। मेरे मायने में चाहे मैं गांधी जी का एग्जाम्पल लूँ या शास्त्री की लूँ, चाहे बहुत सभी महान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका बस एक ही स्वप्न है कि वो
Thank you, Rini. It was a great speech by you. Now, I would like to invite our OSH advisor, Aditi ma'am, to say words on Mahatma Gandhi. Thank you so much, Aditya. Good afternoon, everyone. जैसे कि आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो है 2047 में जो हमारे पहले के गांधी जी और शास्त्री जी ने जो विज़न देखा था इंडिया का, क्या हम उसको 2047 तक अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, एक तो ये भी चीज़ हमें देखनी है। और उसके लिए अभी जो 25 ईयर्स बाकी हैं हमें उसको अचीव करने के लिए, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें इस पे भी फोकस करना है। शास्त्री जी पे और गांधी जी पे जैसे मेरे पहले बोल चुके हैं, प्रियंका ने बोला, अखंड ने बोला, आदित्य ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो इन लोगों ने पहले बता दिया है। अब मैं थोड़ा फ्यूचर की बात करना चाहूँगी कि जो अभी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से हम लोगों को पंच प्रण दिया है, मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि किस तरह से उन पंच प्रण का यूज़ करके हम आने वाले जो हमारे 100 साल हैं भारत की आज़ादी को, उसको एक अमृत महोत्सव के रूप में मना सकते हैं। और जो उनका सपना था कि हमारा भारत कैसा हो, जो उनका विज़न था गांधी जी का और शास्त्री जी का और हर उस स्वतंत्रता सेनानी का जिसने हमारे भारत की आज़ादी के लिए कोई ना कोई बलिदान दिया, उसका जो सपना था, हम उसको आज की डेट में क्या ऐसा करें कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उन पंच प्रण के बारे में बोलना चाहूँगी। तो उनका जैसे पहला था कि हमारा जो कि है पहला प्रण है विकसित भारत, कि जो कि है 2047 तक हमारा इंडिया को, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे हम डेवलप्ड नेशन के रूप में उभर के आएँ, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का जो हमने अभी तक की है जैसे ओपन डेफिकेशन हो गया, या टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम आगे चीज़ों को अचीव करें। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 5G योजना का लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से भारत हमारा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, पर अब हमें थोड़े बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे और उनकी एक डेवलप्ड नेशन की तरफ हमें अग्रसर होना पड़ेगा। तो हमें मेनली उस पर फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इनोवेशन को अच्छे से मतलब मोटिवेट कर सकें कि लोगों के अंदर इनोवेशन का एक भाव आए, और जितना ज़्यादा इनोवेशन होता है उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, उतना ज़्यादा हमारा देश डेवलप करता है। सेकंड जो है उनका पंच प्रण में से सेकंड प्रण है गुलामी से मुक्ति। गुलामी से मुक्ति जो है वो बेसिकली आज़ाद तो हम हो गए हैं, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं अभी भी हम जो कि है उस जोन में चल रहे हैं। एक जो इतने सालों की 300-400 सालों की जो गुलामी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में आज भी है। तो उस गुलामी की मेंटालिटी से हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम उस गुलामी वाले जोन से निकल सकें कि अब हमारा देश आज़ाद है और अब हमें अपने जो आज़ादी है और जो उन चीज़ों को जो डेवलपमेंट के लिए चीज़ ज़रूरी है उन पे हम फोकस कर सकें। तो हमें उस मेंटालिटी से निकलने पे भी फोकस करना चाहिए। तीसरा उनका जो प्रण है वो है विरासत पर गर्व। आज जो कि है भारत की जितनी भी विरासत है, जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें, संस्कृति है, उन सब पे पूरी देश दुनिया सब जगह हर जगह डिस्कशन चल रहा है इस चीज़ पे कि भारत की जो विरासत है, जो भी यहाँ का कल्चर है, जो भी यहाँ का ट्रेडिशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, किस तरह से हम जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, कुछ भी हो गया, किस तरह से यहाँ का ट्रेडिशन है या किस तरह से हमारी जो विरासत है वो हमें आगे डेवलप करने पे हेल्प कर सकती है। तो हमें पहले जब इस बात पे गर्व होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और तभी हम उसको बाकी दुनिया को बता के उसके लिए हम बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे कि हाँ किस तरह से वो यहाँ की विरासत या जो चीज़ें हैं जो लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने देश में, वो अडॉप्ट कर सकें। तो हमें किस तरह से विरासत पे गर्व करें, ये भी हमारा तीसरा मंत्र है। चौथा जो कि उनका प्रण है वो है एकता और एकजुटता। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो कि भारत बहुत ही डाइवर्सफुल है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जाता है भारत के लिए। जितनी तरह की डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं उतनी यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है। हर धर्म के लोग, हर रंग के लोग, हर जाति के लोग, हर प्रथा के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग। इवन बोला जाता है कि हर 2-3 किलोमीटर पे लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, हर लैंग्वेज के लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी किस तरह से हम एकजुट होकर रह सकें, क्योंकि एकता में जो ताकत है उस सब से हम सभी उससे वाकिफ़ हैं।
तो जब हम एकजुटता के साथ काम करेंगे तभी हम देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो किस तरह से हम एकजुट होकर अपने देश को आगे ले जाने पे फोकस करें, वो भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। और 5वां प्रण है हमारा नागरिकों का कर्तव्य। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जैसे हमने देखी हैं अभी तक, ये होता है कि हम लोग की एक सोच है कि ये तो सरकार का काम है, या तो गवर्नमेंट का काम है, या तो किसी अथॉरिटी का काम है। कोई भी छोटा सा काम होता है तो हम लोग उसके लिए हर चीज़ के लिए डाल देते हैं कि ये तो मतलब सरकार करेगी या कोई दूसरा करेगा। लेकिन हमारा खुद का एज अ सिटीज़न क्या कर्तव्य है, हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे एक स्वच्छता भारत का जो पिछले कई सालों से चल रहा है अभियान, उस पर हमने देखा कि जब छोटे छोटे बच्चे कहीं कूड़ा पड़ा होता है उसको उठा के डस्टबिन में डालते हैं, तो वो एक अपना योगदान देते हैं। एज अ सिटीज़न ये उनका भी काम है, ज़रूरी नहीं कि कोई कूड़े वाला ही आके उसको उठाए। तो इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके हम अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्वों, अपने कर्तव्यों को समझ के देश को किस तरह से एक डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जाया जा सकता है, इस पे अगर फोकस करें तो बहुत छोटे छोटे प्रयासों से हम एक बहुत बड़ी, एक जो हमारा 100 साल का एक विज़न था सबका, जो हमारे सेनानियों का और फ्रीडम फाइटर्स का था, उसको हम अचीव ज़रूर कर सकते हैं। तो हम तो यही मतलब अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 5 प्रणों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आगे आने वाले 25 सालों में हम किस तरह से इनको अचीव कर सकें और किस तरह से अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकें। थैंक यू सो मच। If anyone wants to speak or pay their tribute to Gandhi ji or Shastri ji, they can unmute. They can unmute their mic. Is there anyone who wants to speak? If there is no one, then I want to invite Sapurnanand sir to say some words on the occasion. रेस्पेक्टेड मैम एंड बाकी सभी हमारे जो मित्र प्रोग्राम में हैं सभी को नमस्कार। आज हम लोग गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और OSS का ये सेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो आज के सेशन में मेन ये है कि हम लोग गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को कैसे प्रयोग करेंगे 2047 का भारत बनाने में। जो विज़न उन्होंने रखा, जो विज़न उन्होंने देखा, जैसे कि गांधी जी ने ये रखा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए प्रगति भी करनी है, तो ये कैसे हम अचीव करेंगे। और शास्त्री जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने उस समय भारत एक युद्ध से 1962 का चाइना युद्ध से जूझ चुका था और उनके प्रधानमंत्री बनते ही एक दूसरा युद्ध भी भारत ने फेस किया जो कि पाकिस्तान से हुआ भारत का 1965 में। इन 2 युद्धों के मध्य में उन्होंने इस देश को कैसे चलाया और जब देश अकाल का, भुखमरी का, सूखे का शिकार था तो उन्होंने एक समय खाना खाकर लोगों से अपील की कि अन्न को बचाएं और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका ये नारा आज इतना प्रासंगिक है कि उसी को हमारे इस वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है और उसे जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान का नारा में परिवर्तित किया है। तो दोनों भारत की महान विभूतियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हमें जो सिखाया, हमें उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता है और इस तरीके से हमारा देश 1947 में निश्चित रूप से एक विकसित देश के रूप में आएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर इन खूबसूरत शब्दों के लिए। नाउ इट्स अ प्लेजर टू हियर प्रोफेसर शीला मिश्रा मैम एंड टेक हर ब्लेसिंग्स। आई रिक्वेस्ट मैम टू enlighten us with her words. मैम। आदित्य ने OSH के बारे में भी बताया और इसको हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे जो भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं बच्चे, इसको आप अपना प्लेटफॉर्म समझ करके और इसके सेशंस को एनरिच कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स के सजेशंस दे सकते हैं और एक दिशा दे सकते हैं। और जैसे भारत के निर्माण के लिए अभी सारे ही वक्ताओं ने कहा, अदिति ने, प्रियंका ने, अखंड ने, संपूर्णा ने और आदित्य ने भी कहा कि 2047 तक भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो इसमें हम सभी का योगदान क्या हो सकता है। एक तो है कि छोटी छोटी बातों में ध्यान
डिजिटल युग में जब पूरी दुनिया हमारे टिप्स पे होगी, हमारे एक क्लिक पर हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बोलकर कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं। ऐसे में जो हमारा अपना चरित्र है, जो हमारा अपना व्यक्तित्व है, जो हमारा अपना माइंड है, कई बार इस स्थिति में पहुंच जाता है कि हम चाह करके भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को उसके विश्व गुरु के स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित करना है, भारत को अपने विज्ञान, अपने किसान, अपने जो नागरिक हैं उन पर गर्व करने योग्य बनाना है। तो इन सबको करने के लिए सबसे पहले हमें इस योग्य बनना होगा। और हम इस योग्य कैसे बन सकते हैं? इस योग्य बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप पर नियंत्रण करना सीखना होगा, जिसके बारे में गांधी जी ने 3 मंदिरों के माध्यम से बताया। कभी विस्तार से इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं जिनको आज हम याद कर रहे हैं, वो है हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दुर्भाग्य से उनके बारे में हमारे आज के युवा बच्चे उतना अधिक नहीं जानते। गांधी जी के विषय में बहुत सारे सेमिनार, वेबिनार, बहुत सारे लेख आए दिन आते रहते हैं, परंतु शायद उस सादगी से भरपूर व्यक्तित्व के बारे में हम कहीं ना कहीं अज्ञानी रह जाते हैं या उनसे अपरिचित रह जाते हैं। अभी इस विषय में अभी संपूर्ण हम चर्चा कर रहे थे। उस समय 1965 के युद्ध के समय जब भारत को यूएस की तरफ से चेतावनी दी गई कि आप अभी तत्काल पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दीजिए, वरना हम आपके यहाँ गेहूं की सप्लाई रोक देंगे। उस समय हमारा भारत खाद्यान्न के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर निर्भर था, परंतु समस्या होते हुए शास्त्री जी ने भारत के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने तत्काल प्रयोग अपने परिवार से शुरू किया। उन्होंने कहा क्या हम एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? और इसके साथ साथ उन्होंने पूरे भारत में हर नागरिक से अपील किया, क्या हफ्ते में एक दिन एक भोजन हम छोड़ सकते हैं, जिससे हम खाद्यान्न की इस कमी को पूरा कर सकते। ये कमिटमेंट उस भाव को दिखाता है जिस भाव के साथ आज भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि पूरे विश्व को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की स्थिति में है। जब विश्व में हमारे पड़ोसी देशों में खाद्यान्न की कमी हुई या कोविड महामारी के समय जब विश्व में औषधियों की कमी हुई, ऐसे में भारत ने अपने उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए, सबकी सहायता करने का संकल्प किया। तो आज हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम एक तो अपने को इस योग्य बना, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, अपने संकल्प को और अपनी दिशा को भारत 2047 में कैसा होगा, उसके सपने को पूरा करने योग्य बनाए। और उसके साथ साथ जो शास्त्री जी की सादगी थी उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम विश्व के चकाचौंध में कई बार अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद जो विकसित राष्ट्र हैं उनके जैसा बनने में ही हमारा लक्ष्य पूरा है। लेकिन विकसित राष्ट्र आज किस स्थिति से जा रहे हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो वहाँ की स्थिति ये है कि आज युवा पीढ़ी में 5 में से कम 4 बच्चे मानसिक स्वास्थ्य की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ का जो आकलन है कि लगभग 50% लोग अपने भी जीवन काल में किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो इन समस्याओं के लिए भी आप जानते हैं कि जो भारत का दर्शन है, जिसके बारे में अभी अदिति ने कहा कि भारत की परंपराओं पर गर्व करें और भारत की जो ज्ञान है, जो भारत का जो दर्शन है, जो भारत की ख्याति है, उसको जाने समझे और प्रयोग में लाए। तो भारत ने क्या कहा है
भारत ने सदैव पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है, और परिवार में जब एक व्यक्ति कष्ट से गुजर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति उत्सव नहीं मना सकता। तो आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, उनकी आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। सहायता करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, आप उनके प्रति सद्भाव रख सकते हैं। आप यदि उनसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो उनको ज्ञान दे सकते हैं, आप उनको उत्साहवर्धन कर सकते हैं, आप उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, जिससे वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके आगे चलने योग्य बन सके। तो भारत की जो परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, उस परंपरा पर गर्व करना है। उस पंच प्रण में जो कहा गया है, उसमें अंतिम प्रण में ये भी बताया कि अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं, आयोग बने हुए हैं, मानवाधिकार आयोग, और हर प्रकार की जाति के लिए भी आयोग, या महिलाओं के लिए आयोग, या विभिन्न लोगों के लिए आयोग। वो आयोग अच्छी बात है, क्योंकि समाज में यदि कुछ लोग किसी प्रकार से किसी भी भेदभाव का शिकार हुए हैं तो उनके लिए आयोग अच्छा है। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही सचेत हैं? क्या हमारा आम नागरिक का जो कर्तव्य है कि अपने देश के सम्मान को, अपने देश के जो संपत्ति है, अपने देश के जो नागरिक हैं और अपने देश की जो विचारधारा है, क्या कहीं जाने अनजाने हम उसको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे? आज बड़े गर्व की बात है कि जिसको हम राजपथ कहते थे, आज उसे हम कर्तव्य पथ कह रहे हैं। तो ये भी एक संदेश है कि हमें अधिकार से अधिक अपने अपने कर्तव्य के ऊपर भी फोकस करना है। और जब कर्तव्य पर फोकस करेंगे तो जिसके जिसके भी अधिकार हैं उसको वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो अधिकार और कर्तव्य ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रूप में चल रहे हैं। तो हम अपना कर्तव्य करें जिससे हर किसी को अपना अपना अधिकार प्राप्त हो सके। और सादा जीवन, उच्च विचार, इसके साथ ही मातृभाषा पर गर्व करें। जब दूसरे प्रण में ये कहा गया कि कॉलोनियल माइंडसेट से पूरी तरह मुक्ति, तो उसका अर्थ ये है भाषा कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन भाषा के प्रति जो अवधारणा होती है, समस्या उससे है। यदि हम ये सोच लेते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा या हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बोलने से हमारा सम्मान नहीं बढ़ रहा है और हम किसी दूसरी भाषा का उपयोग करने लगते हैं इस भाव के साथ, तो वो भाव हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। वो भाव कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। हमें कोशिश करनी है कि अपनी भाषा, अपने देश, अपने पहनावे, अपने लोगों पे, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखें और फिर अपने के दायरे को विस्तृत करें। तो पहले हम शुरू करें अपने आप से बढ़ करके हम उस दायरे को परिवार तक ले जाएं, परिवार से समाज को अपना माने, फिर समाज के बाद अपने पूरे देश को अपना माने और उस अपने देश के बाद पूरी मानवता को अपना माने। तो ये अपनाने का जो सिलसिला है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज हो जाए। ये नहीं है कि हम किसी को अच्छा, किसी को कम अच्छा मान करके किसी को छोड़ें और किसी को अधिक महत्व दें। ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम गांधी जी के उस स्वप्न को जो हिंद स्वराज के माध्यम से उन्होंने हम लोगों के साथ साझा किया है, पूरा करने में अपने आप को सफल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि जो हमें आज़ादी सन 47 में मिली वो अधूरी है, वो केवल एक राजनैतिक आज़ादी है। यानी अब आपके जो राजनीतिक मुखिया हैं वो भारतीय हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें पूरी तरह से सामाजिक आज़ादी तब मिलेगी जब हमारे गांव, हमारे छोटे छोटे जो शहर, कस्बे, हर जगह पर हर एक को वो सब अधिकार मिलेंगे जो किसी भी बड़े शहर में, किसी बड़े विकसित देश में जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए
सम्मान होना चाहिए। और जिस दिन हम इन भाव को आत्मसात कर लेंगे, मुझे लगता है कि 2047 का वो विकसित भारत का स्वप्न, विश्व गुरु बनने का स्वप्न अवश्य साकार होगा। आप सभी ने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से संचालित किया, अपने सुझाव सभी ने दिए। आप सबको हृदय से 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई। आप सभी इस पथ पर ऐसे ही आगे चलते रहें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूं। Be the change that you wish to see in the world, and a man is but a product of his thought. ऐसे ही कुछ थॉट्स हैं जिन्होंने हमें बचपन से ही, हम सभी को बचपन से ही इंस्पायर किया है। तो इस सेशन को ख़त्म करते हुए मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान।